डीके क्या था? अल्फा डीके वाज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स का जो छोटा न्यूक्लियाई है वो एमिट कर देता था। अल्फा रेज बोल लो या अल्फा रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल्स बोल लो, दोज आर व्हाट? हीलियम न्यूक्लियाइज, राइट? इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन व्हाट? इन विच न्यूक्लियाइज? जिनमें मास नंबर बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिक रिपल्शन उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होता है, राइट? सो alpha decay usually takes place in all the nuclei, takes place in all nuclei with mass number greater than 210. स्मॉलर न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकता, राइट? बिकॉज स्मॉलर न्यूक्लियस में इतना ज्यादा प्रोटॉन्स नहीं है, तो इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं है, राइट? लार्जर न्यूक्लियस में ढेर सारे प्रोटॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन स्ट्रांग हो जाता है। एज अ रिजल्ट कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स टूट के अलग हो जाते हैं, राइट? सो दिस टेक्स प्लेस इन ऑल द न्यूक्लियस विद मास नंबर ग्रेटर देन 210. कल हमने डीके स्कीम देखी हुई थी। इफ देयर इज एन एलिमेंट एक्स with mass number atomic number set and mass number x, this emits 2 neutrons and 2 protons, so 2he4. Mass number reduces by 4 and atomic number reduces by 2, right? Plus some amount of energy is released, right? Are you समझ में? अब now these are what? Daughter nuclei. We call them daughter nuclei, and this is parent nuclei, right? So mass energy अगर आप देखोगे ना, mass energy that is total mass of daughter nuclei is lesser than that of the parent nuclei. So if I talk of mass of X, then it is more than mass of Y plus mass of helium nucleus, right? So वो जो difference है mass का, the difference in the mass becomes mass defect, right? A new mass defect, पहले भी mass defect रहा होगा, is a new mass defect, right? This difference amount of mass is converted into energy. So energy equal to mx minus my minus m of mass of helium nucleus into c square. This amount of energy is released. This energy is known as Q value of the decay, right? Are you watching me? हाँ सर। Okay. So Q value उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, it's important. The Q value you should know of the decay scheme. Then, if I talk of properties, junior classes में भी पढ़े हमने properties, like first one, alpha particles जो है, alpha radiation से alpha particle consists of positively charged particles, right? Helium nucleus is positively charged. So alpha rays contain or consist of positively charged particles, and as it contains positively charged particles, these rays will be deflected by electric and magnetic field, hence are deflected by electric and magnetic field, right? They are deflected by electric and magnetic field, right? Logical है ना, इसमें confusion तो नहीं है. Then they have high ionizing power. Why? They are charged particles, they have mass, they travel with very high velocity, so they are capable of ionizing the gas or medium through which they pass. They have capability of knocking out some electrons from different molecules or atoms. Hence, they can ionize the gas through which they pass, right? Obviously, they travel with high velocity. They travel with speed of the order 10 raised to 6 meter per second. Speed से travel करते हैं. Then they have penetrating power, but it is less. They can penetrate through a medium, through a not metal, I'll say,
but at least through air they can penetrate, but only up to certain centimeters. So I'll say they have penetrating power, but low. So their penetrating power is low. So they have low penetrating power, right? If I talk of penetrating power, they can penetrate up to few centimeters of air. They can penetrate through air up to few centimeters, right? So this is what I say is penetrating power of alpha particle, right? Fluorescence, they produce fluorescence too. Then they produce fluorescence, right? ऐसे तो बुक उठाओगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई मिल जाएंगी, नॉट इन एनसीईआरटी बट अदर बुक्स, नॉट नीडेड, बस इतना काफी है, इतना आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए इन अल्फा पार्टिकल्स, राइट, और अल्फा रेडिएशन। क्लियर है? क्लियर हो गया अल्फा रेडिएशन? यस सर। नहीं समझ में आया तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। अल्फा डीके क्यों होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अल्फा डीके? क्या? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट तो आएगा ही आएगा। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों? लेकिन किस सेंस में? क्या हो गया ऐसा कि स्टेबल हो गया? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से कम हो गया, नहीं? सी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगा if positive charge inside the nucleus decreases, hence it will attain stability, right? So main purpose of alpha decay is to decrease the charge inside the positive charge inside the nucleus, to decrease the electric force of repulsion. समझा? So ये छोटे न्यूक्लियस में होगा या बड़े न्यूक्लियस में होगा अल्फा डीके? क्या अभी तो बताया मैंने, अल्फा डीके किस में होगा? छोटे न्यूक्लियस या बड़े न्यूक्लियस में? जिसका ज्यादा मास नंबर, ज्यादा मास नंबर होगा। It takes place in all the nucleus with mass number greater than 210. छोटे न्यूक्लियस में तो हो ही नहीं सकता ना। अब एक कार्बन में से अल्फा पार्टिकल कहां से निकलेगा? इतना रिपल्शन हो ही ना उसमें। न्यूक्लियर फोर्सेस वुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक रिपल्शन। ओके, so these are some properties. कितना मास नंबर कम होगा आफ्टर अल्फा डीके? मास नंबर विल डिक्रीज बाय एक अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल निकलने से मास नंबर कितना डिक्रीज होता है 4 न्यूक्लियस का? 4, एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। चलो अब चलते हैं हम लोग बीटा डीके की तरफ, राइट? बीटा डीके, इफ यू रीड सम ऑफ द बुक्स, वहां पर लिखा हुआ है कि फॉर स्टेबिलिटी इन न्यूक्लियस, number of the ratio of number of neutrons या number of protons to number of neutrons, this ratio should be nearly 1. तो इधर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लूं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ले लूं, तो ग्राफ अगर उनके बीच का ड्रॉ करूं, फॉर व्हाट? फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। नाउ इफ आई मार्क ऑल द न्यूक्लियस इन दिस ग्राफ, किसी में प्रोटॉन ज्यादा है, किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा है, किसी में दोनों इक्वल हैं, अलग अलग न्यूक्लियाई हैं, राइट? सो जिसमें एक सेट न्यूट्रॉन डाला है, जिसमें जो रेशियो है 1 के क्लोज होता है, दे आर मोर स्टेबल। दिस रेशियो इफ इज क्लोज टू 1, देन दे से इट इज मोर स्टेबल। बट इफ एनी न्यूक्लियस इज फार फ्रॉम दिस लाइन, मतलब दूर रहेगा, या तो न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं या प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हैं, तो इट विल बी अनस्टेबल एंड इट विल हैव अ टेंडेंसी टू make neutron proton ratio equal to 1. Are you understand? So if you read some of the textbooks, this explanation is given.
टेंडेंसी होती है एक न्यूक्लियस की कि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल नंबर में हो. इफ प्रोटॉन्स आर मोर, देन इट विल हैव अ टेंडेंसी टू increase the number of neutrons and decrease the number of protons. If it has more neutrons, then it will have a tendency to increase the number of protons and decrease the number of neutrons. Altogether, this ratio, number of protons by number of neutrons, should be equal to 1. ऐसी एक टेंडेंसी उनके अंदर होती है, राइट? आ रहा समझ में? So, in case, if in any nucleus, number of protons, पहले न्यूट्रॉन्स लिख लेते हैं, ज्यादा कॉमन एमिशन है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन needed for stability, a neutron disintegrates into a proton and an electron. That emitted electron is known as beta particle. Disintegrates into a proton, an electron, and एक नया पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, राइट? इसमें डिसइंटीग्रेट होता है, राइट? दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बीटा पार्टिकल. देन इलेक्ट्रॉन emitted electron is known as beta particle. कुछ इस तरह से दिखेगा. 0n1, this neutron gets converted to proton बनेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट? प्लस देयर इज एन एंटी न्यूट्रिनो. दिस इज known as beta negative or beta particle. We call it beta negative or beta particle, right? Getting it? सर न्यूट्रॉन से यही जो प्रोटॉन कैसे बना? सॉरी मतलब दिस इज अ प्रोसेस, दिस हैपेंस. अब कोई उसके अंदर का मैकेनिज्म नहीं जानता हाउ इट डिसइंटीग्रेट्स. दिस तो आई हैव एक्सप्लेन इन न्यूट्रॉन आल्सो. न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ भी रख दोगे तो वो थोड़ी देर में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. एक प्रोटॉन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन साथ में, इसी के लिए चार्ज नहीं है उसमें. अब आप उसके कॉम्पोजिशन में मत जाओ. कई लोग इसको देख के ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिला के न्यूट्रॉन बना है. बिल्कुल ऐसा नहीं है. एक प्रोटॉन का मास और एक इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करोगे तो आपको न्यूट्रॉन का मास नहीं मिलेगा. अब उसके पीछे तो दूसरी थ्योरी लिखी हुई है. क्वार्क्स हैं, न्यूट्रॉन बने हैं क्वार्क से, प्रोटॉन बने हैं क्वार्क से. तो आप ऐसा मत सोचो कि वो पहले से एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चिपक के बना हुआ था. ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे गॉट यूनाइटेड एंड फॉर्म्स अ न्यूट्रॉन. ऐसा कुछ नहीं. न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है. फंडामेंटल पार्टिकल है, दे डिसइंटीग्रेट. ये पार्टिकल डिसइंटीग्रेट करके इसमें बन जाता है. Now in higher syllabus कहीं अगर लिखा होगा कि भाई ये this is the mechanism or this is the reason why they get converted, so I don't know, but हाँ मुझे इतना मालूम है कि disintegrates. हेलो. हाँ ठीक है. हाँ तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. बस हाँ ठीक है, डिसइंटीग्रेट होता है. It disintegrates into an electron and a positron, sorry, antineutrino and a proton, right? यही जो ये जो पार्टिकल यही न्यूक्लियस से एमिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल, राइट? इसके एमिशन से रिजल्ट क्या होगा सोचो. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम हो जाएगा. सपोज एक न्यूक्लियस है. सपोज एज अ न्यूक्लियस वेयर न्यूट्रॉन्स आर से 120 एंड प्रोटॉन्स आर 97. सपोज एक एग्जांपल लिखा हुआ है. तो क्या होगा? एक प्रोटॉन जो होगा, न्यूट्रॉन जो होगा वो टूट जाएगा. तो अब इसमें 190 न्यूट्रॉन बचेंगे एंड प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 98. सो दिस रेशियो नाउ बिकम्स क्लोजर टू 1. और एक टूट जाएगा तो 118 हो जाएंगे और ये 99 है. तो धीरे धीरे 1 की तरफ जा रहा है, राइट?
सो एक थ्योरी लिखी हुई है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का रेशियो जो है 1 होना चाहिए फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। और सर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन ही तो है, बाहर एमिट हो गया ना इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यहाँ एक सबसे वही तो बताना, यही तो बीटा रे है ना, बीटा पार्टिकल यही तो है। अच्छा हाँ। बीटा डीके जो है, बीटा एमिशन जो है, बीटा पार्टिकल जो निकलता है न्यूक्लियस से, दैट इज दिस थिंग, वो इलेक्ट्रॉन ही है। एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल की एनर्जी है? पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, सॉरी। हाँ ठीक। एंटी न्यूट्रिनो इज अ पार्टिकल, इट्स मास इज वेरी 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 स्मॉल, बीइंग अ न्यूट्रल पार्टिकल वो इंटरेक्ट भी नहीं करता कईयों से, राइट? मतलब आप बुक्स रीड करोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, it's very difficult to detect a neutrino and anti-neutrino because they do not interact with matter. They can pass through the earth without interacting with matter. पूरी अर्थ को क्रॉस कर जाएंगे और मैटर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। दे हैव एनर्जी बट हमारी है, अब वो थोड़ी ना आपको आके लगेगा तो आपको फील होने वाला, वो इंटरेक्ट ही नहीं करेगा मैटर से, आपको क्रॉस कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? नीदर इट प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, ना कहीं पे जाके स्ट्राइक करके कुछ करता है, इंटरेक्ट ही नहीं करता, वो आर पार निकल जाता है। सो इट इज रिटन दैट इट इवन क्रॉसेस द अर्थ विदाउट इंटरेक्टिंग विद एनी मैटर, पूरे अर्थ को क्रॉस करके चला जाता है बिना मैटर से इंटरेक्ट किए। ओके हाँ सर। सो न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो, दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। तो पता कैसे चला? वो एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी मोमेंटम कैलकुलेशन से उनको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कुछ तो डिफरेंस रह गया। तो या मे बी अब हायर सिलेबस में कहीं लिखा होगा कि नाउ दे हैव स्टार्टेड डिटेक्टिंग इट, तो हो सकता है दे माइट हैव डिटेक्टेड, नहीं? बट अपने सिलेबस के तो बहुत दूर दूर तक नहीं दिया हुआ। अपने सिलेबस के हिसाब से इट इज डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट बिकॉज इट डज नॉट इंटरेक्ट विद मैटर, वो आर पर चला जाता है अर्थ को लेकिन इंटरेक्ट नहीं करता, राइट? So, if there is a nuclei X with atomic number Z and mass number A, तो अगर ये बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो क्या होगा? प्रोटॉन एक बढ़ गया, प्रोटॉन एक बढ़ गया ना, तो if proton increases, so what will happen? Atomic number will increase by 1. So due to beta emission, atomic number increases by 1, whereas मास नंबर रिमेन सेम, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन थोड़ी चेंज हो, एक न्यूट्रॉन ही कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, सॉरी ये क्या है? अच्छा, एक न्यूट्रॉन कम हुआ और एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसी के लिए सेम बढ़ गया, तो टोटल तो उतना ही रहा ना, मास नंबर डज नॉट चेंजेस बट प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गया तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, प्लस -1 E0 कह लो या बीटा पार्टिकल कह लो, राइट? क्लियर ना? Sorry, -1. Okay. Hello. हाँ सर। Now, इसका अपोजिट प्रोसेस भी होता है, एक प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। So, if in any nuclei number of proton, अगर यहाँ पे लिखा होता नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नीडेड फॉर स्टेबिलिटी, देन प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट होता है इनटू अ न्यूट्रॉन, अ पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। एमिटेड पॉजिट्रॉन इज नोन एज बीटा पार्टिकल। ये बहुत रेयर एमिशन है, कम होता है बट होता है, राइट? एन एमिटेड पॉजिट्रॉन इज नोन एज बीटा पार्टिकल। तो ये अगर मैं एक साइड रख दूं तो एक दूसरा एमिशन भी होता है, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन splits into या disintegrates into a neutron and +1 E0, पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको, एंड अ न्यूट्रिनो, उसमें एंटी न्यूट्रिनो से इसमें न्यूट्रिनो, इसी को हम लोग बीटा पॉजिटिव भी बोलते हैं, नोन एज बीटा पॉजिटिव, राइट? सो ZXA, अगर ये एमिशन होगा तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 1, एटॉमिक नंबर विल
डिक्रीज बाय 1, एक प्रोटॉन खराब हो गया, मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया, एंड दिस रिमेन्स सेम, प्लस 1 E 0. ओके, समझा? हाँ सर। So mass number will remain same, atomic number will decrease by 1 in case of beta positive. Okay. So ये हो गया. अच्छा, अभी मैं अगर आपसे पूछूं what is the purpose of beta decay, तो एक तो कई बुक्स में आप रीड करोगे तो ये एक्सप्लेनेशन लिखा होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो रेशियो है that should be nearly equal to 1, right? Or there is another force in nature, weak nuclear forces. If you remember 11th के starting में हमने पढ़ा था weak nuclear forces. Those are responsible for beta emission, right? So if you want to remember this you can remember that weak nuclear forces, acting between a neutron and a positron. So proton is responsible for beta emission. समझा? So if someone says, या someone asks ये क्या पर्पस है बीटा डीके का, तो दो एक्सप्लेनेशन है आपके पास. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डेफिनेट रेशियो में होना चाहिए फॉर बेटर स्टेबिलिटी. तो अगर न्यूट्रॉन्स ज्यादा है स्टेबिलिटी के लिए जितनी जरूरत है उससे, तो इट विल डिसइंटीग्रेट इनटू प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस. और अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो इट विल डिसइंटीग्रेट इनटू न्यूट्रॉन एंड बीटा पॉजिटिव. अगर ऐसा नहीं है तो सॉरी, दूसरा एक्सप्लेनेशन जो आपको मिलेगा दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ऑलराइट? Yes, sir. If I want to write Q value of this reaction, तो Q value of this reaction क्या होगा? Q value of this reaction would be, यहाँ पे naturally डॉटर न्यूक्लियर का मास कम है, तो मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y इंटू सी स्क्वायर. एक क्वेश्चन जरूर आता है कि फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास क्या करोगे आप? तो बीटा पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास रहेगा, बट दैट इज नेग्लिजिबल, राइट? तो उसको अगर अपन नेग्लेक्ट कर दें तो Q वैल्यू में जो काउंट करते हैं हम लोग mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर लेते हैं, राइट? ना ये जो एमिटेड बीटा पार्टिकल है उसकी एनर्जी Q वैल्यू से ज्यादा होगी, कम होगी, इक्वल होगी? जो रिएक्शन में Q वैल्यू आया तो बीटा पार्टिकल लेके निकलेगा वो एनर्जी, राइट? जो एनर्जी है दैट विल अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, राइट? So its energy will be same as Q or lesser than Q or more than Q. बोलो. रिपीट करो सर. ये जो डीके स्कीम है, ये डीके स्कीम देखो और आप बताओ, इससे जो Q वैल्यू आई होगी, तो ये बीटा पार्टिकल जो है इसकी एनर्जी Q वैल्यू के इक्वल होगी या Q वैल्यू से कम होगी? कम होगी. कैन यू से व्हाई? एंटी साथ में कुछ न्यूट्रिनो भी निकल रहा है. एंटी न्यूट्रिनो भी है. तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कभी, तो बीटा पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ emitted beta particles is